all, welcome to my YouTube channel The Brown Daughter. I am Janvi Tiwari and I am up with a new video. So जैसे कि टाइटल से आप लोगों को पता चल गया है, we are doing outfit from scratch for wedding and I am very excited because this is not a normal wedding. I am going to Italy for one Indian wedding and उसके लिए मुझे बहुत ही सुंदर सा आउटफिट बनाना है. तो अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, बस I have one thing that I want to do something different. I don't want to wear like क्लासिक लहंगा और शरारा और अनारकली, नहीं, मुझे कुछ बहुत ही यमी चटपटा सा पहनने का मन कर रहा है. सो लेट्स सी व्हाट आई एंड अप चूजिंग. मेरा मन है कि मैं एक बार Pinterest पे जाऊं और मैं देखूं मुझे क्या करना है. आई हैव वन थिंग इन माई माइंड, दैट इज आई वॉन्ट टू डू लाइक स्लिट लहंगा टाइप ऑफ अ थिंग, लाइक थोड़ा सा हॉट लगे बट इंडियन फैब्रिक में. सो लेट्स सी, आई वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट दिस टाइम. सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल्सो मैंने ये पहले भी बोला हुआ, यूजुअली यू गेट इंस्पिरेशन व्हेन यू सी द फैब्रिक. सो पहले जाएंगे हम फैब्रिक देखेंगे, बट थोड़ा सा इंस्पो निकाल लेते हैं एंड देन विल फिगर आउट व्हाट वी वांट टू डू. सो लेट्स गो. ऑल्सो 12 बजे, क्या गर्मी है, क्या गर्मी है. ये ड्यूईनेस नहीं है, थोड़ी सी है, बट पसीना भी बहुत ज्यादा है. ओके, लेट्स गो. सो आई एम गोइंग टू सर्च स्लिट लहंगा. Let's see what do we get. Okay, I like this, but the thing is I want something जो मैं बाद में भी पहन पाऊँ, not something जो एकदम ऐसे एक ही बार पहन लिया अब क्या करेंगे. But this red one looks good, so we can take this as an inspo. This one also looks nice, but I'm not sure. और देखते हैं. I really like this fabric, but I have something like this जो मैंने मृदुल की शादी पे पहना था. वो काफी similar tone में चला जाता है, सब ऐसे बनारसी में था. I also have that outfit which I don't want to recreate. Oh, I really like this. So I wanna go for like a side slit from both the sides. बहुत hot लगेगा. And that is something जो मैं बाकी जगह पहन भी पाऊंगी, I feel like, क्योंकि सामने की स्लिट बहुत ज्यादा एविडेंट होती है, साइड की फिर भी चल जाती है. So this is a good inspo. Okay, this also looks good. Okay, yeah, this is the reference that we are going with. This is the type of blouse I want, like a halter neck. This is a good inspo. I'm gonna save this. Cool, now let's draw my piece and then let's go. Let's try to find the fabric. Okay, deciding the silhouette was not very difficult, so I'm very happy with it. Now let's draw what we exactly want and then let's leave. Starting with the blouse, we want it to be like a halter neck blouse like this, and then for the skirt I want very straight but little bit of flow type of a skirt, and then there will be like a slit here. For the back I would want like a slight amount of crisscross pattern so that if I gain weight or lose weight it should be okay. I'm not sure if this is possible or not in halter neck, but we can try. And then the skirt will again have like a slit pattern. Okay, this is a rough sketch how I want it to look. I'm happy with it. Let's see how it goes. Like also यहाँ पे ऐसे good tassels and also a dupatta, एकदम flowy सा dupatta. Also I want like patterns to be like stripes in here like this, and just not आगे even the same thing at the back, तभी सुंदर लगेगा. Here I can try stripes like this, like इसी का same work, but we can go it like this because that is what we have in our inspo image. So this is what we are looking for, and इसमें मुझे पूरा ऐसे hand work चाहिए रहेगा. अगर हमें hand work वाला fabric मिलता है तो perfect, अगर नहीं मिलता है तो we will have to get this hand work done. I really like how my vision is clear this time with what I want. नहीं तो usually ऐसे बहुत ही ज्यादा ऐसे मेरे दिमाग में कुछ होता नहीं है एंड वहां जाके देखते हैं. एंड आई वॉन्ट माई फैब्रिक टू बी अ शाइनी फैब्रिक, सो वी आर अवॉइडिंग कॉटन. वी कैन गो विद सिल्क सैटिन टाइप, ताकि उसमें से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आए लाइट का. दैट इज वॉट वी वॉन्ट, एंड आई रियली वॉन्ट लाइक गुड स्ट्राइप वाला हैंड वर्क. सो इसके लिए हम सैटिन का कपड़ा देख सकते हैं. थोड़ा इंडियन प्रिंट चाहिए तो हम गज्जी सिल्क में भी जा सकते हैं, वो भी काफी अच्छा लगेगा, बट विथ वर्क. दैट विल बी आवर फर्स्ट प्रेफरेंस. बट इफ यू डोंट गेट वर्क, वी विल हैव टू गेट द फैब्रिक एंड देन गेट द हैंड वर्क डन एंड देन गेट इट स्टिच. सो it's going to be a task, but let's go. And that's my outfit for the day. I love this dress so much. अब मुझे याद आ रहा है कि मुझे इसमें और भी ऐसे ड्रेस बनवानी है, so I can just get like good cotton fabric and I can make dresses like this. एक आउटफिट बनाने जाती हूँ, 75 फैब्रिक ले आती हूँ अलग अलग चीजें बनाने के लिए. So I just avoid it कि मैं फैब्रिक शॉप पे ना जाऊँ. फैब्रिक शॉप पे जाके I'm like that kid जो ऐसे कैंडी शॉप में आ जाता है और उसको लगता है ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी लेना. I am that person when I go to the fabric shop. But I really like this dress. I got this from Nykaa Fashion. Very cute, very comfy, and I feel like this pattern looks very good on my body type. So yes, I'll try to find fabric and make similar pieces.
हेलो मम्मी। मम्मी का सूट देखो, मम्मी ने अभी अभी मिंत्रा से मंगवा के पहना है, बहुत कूल लग रहा है मम्मी। मुझे भी कुछ ऐसा ही बनवाना है, मैं अभी आउटफिट लेने जा रही हूँ। मुझे मेरा लहंगा ऐसा स्ट्राइप्स वाला चाहिए और ये भी। मुझे आशीर्वाद दो कि बेटा तुम्हारा आउटफिट अच्छा बने। माय गॉड, दो जल्दी आशीर्वाद दो। आउटफिट आपका अच्छा बने। देखो आशीर्वाद लेके जाना चाहिए, मम्मी का काम अच्छा होता है। मिश्री भी मुझे आशीर्वाद दे रही है, देखो आशीर्वाद दे दो। यस गुड गर्ल। देखो गाइस मुझे मिश्री ने भी आशीर्वाद दिया है। मैं थोड़ी सी तो गधी हूँ, मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि वाओ आज तो ट्रैफिक ही नहीं है, कितनी लकी हूँ मैं। फिर रियलाइज हुआ कि आज तो संडे है, थोड़ा सा कम ही खुला होगा। एंड आई रियली लाइक दिस शॉप, नॉट स्पॉन्सर्ड बट ये बंद है। आई एम एट रिजेंट मॉल। और भी बहुत जगह है जहाँ आप फैब्रिक लेने जा सकते हो सूरत में, बट दिस इज द कन्वीनियंट प्लेस सो आई कम हियर। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बिकॉज इट्स अ रिजेंट मॉल, एज यू हियर द नेम, इट इज अ मॉल बट कन्वीनियंट। लेट्स गो, आई एम एक्साइटेड। ये बार मैं क्लियर मूड बोर्ड के साथ आई हूँ सो आई होप मिल जाए। जो फैब्रिक चाहिए वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, बाकी सारे मैं खरीद रही हूँ। दिस इज माई प्रॉब्लम। कुछ खरीदना आती हूँ, खरीदती तो जाओ। ओके आई शॉप फ्यू थिंग्स बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। जो हमारा इंस्पो है उसके लिए हमें और फैब्रिक देखना है। सो आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट माई डिजाइनर बिकॉज दे हैव मोर प्रिंट्स विद देम। तो एक बार मैं उनसे बात करती हूँ, अगर उनके पास इन हाउस थोड़े फैब्रिक्स हैं। आई वॉन्ट समथिंग इन ब्लू, आई रियली वॉन्ट टू गो विथ इंडिगो ब्लू। आई थिंक दैट लुक्स वेरी गुड ऑन माई स्किन टोन। सो लेट्स सी उनके पास कुछ मिलता है या नहीं। मीनवाइल हमने बाकी सारी चीजें खरीदी है जो हमें जरूरत की नहीं थी। आई एम बैक होम, इट इज लंच टाइम। हमें मम्मी जो फैब्रिक चाहिए था वो नहीं मिला, बट मैं एक बहुत सुंदर फैब्रिक लाई जो मैं मम्मी को दिखाना चाहती हूँ। सो आई एब्सोल्युटली लव काफ्तान्स ऑन मी। सो मैंने एक काफ्तान का फैब्रिक लिया है। आई रिसेंटली वोर दिस ग्रीन काफ्तान एंड आप लोगों को बहुत अच्छा लगा एंड आप लोग लिंक मांग रहे थे, बट मैंने वो ऐसे ही फैब्रिक ले लिया था। मैं कुछ और खरीदने गई थी, मुझे फैब्रिक बहुत अच्छा लगा तो मैंने उसका काफ्तान बनवा लिया था। एंड आई फील आई रियली लाइक काफ्तान ऑन मी, सो आई हैव गॉट दिस येलो फैब्रिक फॉर काफ्तान। मुझे बहुत रिच लगा, बहुत ही सुंदर लगा, इसका काम अच्छा लगा। हम दोनों का फेवरेट कलर है। हम पे येलो देखो कितना मस्त लगता है, वेरी नाइस। अब मैं दिखाती हूँ मम्मी, एक मैं फारसी सूट एंड सलवार बनाऊंगी, एकदम छोटा सा कुर्ता। और वो मैंने लिया है ये देखो, ये महंगा है बट बहुत सुंदर लगेगा। इसका कुर्ता बनेगा और इसकी सलवार बनेगी। एकदम कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये दुपट्टा मैं डाई करवा लूंगी। इसका रिजल्ट आपको YouTube शॉर्ट पे देखने को मिलेगा, सो आप लोग जरूर देखना। अब हमें जो मेन फैब्रिक ढूंढना है वो ढूंढते हैं। Here I am giving measurements to my tailor and उन्होंने मेरे लिए outfit source किया because I couldn't find it and she gave me these two options and I went with this one क्योंकि मुझे लग रहा था इससे हमारा exact reference look achieve होगा। And now it's time for tailoring. Hello you all, finally my outfit is coming and for the first time I have no idea how my outfit is going to be. उसपे इतना ज्यादा हैंडवर्क किया गया है बट मुझे कुछ भी नहीं पता। उन्होंने एक फोटो नहीं भेजा है। इट इज डायरेक्टली कमिंग टू मी नाउ। पोर्टर हो रहा है एंड आई होप इट फिट्स मी वेल। आई एम वेरी वेरी स्केर्ड एंड एक्साइटेड क्योंकि दिस आउटफिट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी अफोर्डेबल। दिस आउटफिट हैज टर्न्ड आउट टू बी स्लाइटली एक्सपेंसिव एंड पे एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड। इट इज ऑन इट्स वे। सो मैंने सोचा मैं एक दो ऐसे फटाफट बताऊं कि मुझे कैसा फील हो रहा है। एक्साइटेड आई एम सपोज टू वेयर दिस एट अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, सो आई होप माई आउटफिट टर्न्स आउट टू बी ब्यूटिफुल एज वेल। लेट्स सी। ओके माई आउटफिट इज हियर एंड आई एम नर्वस। मैंने अभी तक नहीं देखा है बिकॉज आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड माई रिएक्शन। हियर वी गो। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बर्थडे है और मुझे गिफ्ट मिल रहा है जिसके मैंने ही पैसे दिए हैं। इट्स वेरी वियर्ड। लेट्स गो। आई लाइक इट. Okay, it looks nice. It looks very beautiful. Exactly the color that I wanted. Oh my god, it looks stunning. I love the top. बहुत सुंदर काम हुआ है. Exactly how I wanted. And पीछे से it's backless. Love it. And then we have the dupatta like this one. जो हमारी reference था उसमें एकदम simple दुपट्टा था. I really like the work. It's not at all tacky. It's very beautifully done. And here we have the skirt which I'm very excited about. Damn, it looks very pretty. Very, very pretty. It's time to try it out. Let's go. I love how the top fits me. It's also backless. It was worth it, I think. The skirt is super loose. Okay, so right now the slit is coming here and I think थोड़ी सी ऊपर आ सकती है. But I really like how it looks. मैंने थोड़ा सा लंबा भी रखा है because right now I'm wearing short heels. I wish to wear like थोड़ी सी और लंबी heels. But yeah, this is loose. Rest. Wow.
Okay, it is the next day and I am showing the outfit to my family. Let's see their reactions. चलो बताओ कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर। क्या फिटिंग है गोपाल जानू, मजा ही आ गया। अच्छा लग रहा है? बहुत ये गोपाली पहने तभी बोले क्या फिटिंग। हाँ, एक बार गोपाली को भी पहना के दिखा था। वाह, बट बहुत अच्छा बना। बहुत बहुत अच्छा बनाया। हेलो यू ऑल, आई एम सॉरी ये वीडियो मैं एंड करना भूल गई थी, सो हियर आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये आउटफिट अच्छा लगा हो। मेरे लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच दैट आई हैव मेड। आई फील इट कॉम्प्लीमेंट्स माई बॉडी टाइप एंड द कलर एंड द हैंडवर्क, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल बिकॉज इस पे बहुत ज्यादा हैंडवर्क हुआ है, पूरे ब्लाउज पे हुआ है। द फैब्रिक इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। सो ये आउटफिट की कॉस्टिंग गई है मुझे टोटल 20,000 रुपीज विद द फैब्रिक, स्टिचिंग एंड सारी चीजें मिला के। बट आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। आई थिंक मैं बाहर लेने जाती तो मुझे 10-15,000 का पड़ता, बट वो इतना ज्यादा मेड फॉर मी नहीं होता। बट दिस लिटरली लुक्स लाइक इट इज मेड फॉर मी। जब जब मैंने पहना है मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं। सो येस, आप भी बताओ आपको मेरा सबसे अच्छा आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच कौन सा लगता है, एंड रेट दिस आउटफिट इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।